चलिए, तो अब वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली प्लियोट्रॉपी in Marfan syndrome. So the persons with Marfan syndrome, okay, so they have disproportionately long arms, legs, hand and feet. तो अब इसमें किसका मतलब क्या है? There is over stretching. तो इसीलिए जब ओवर स्ट्रेच हो जाएगा आपके ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा, तो आवर्टा भी क्या होगा? वीक होगा. तो वीकेंड आवर्टा, पुअर आईसाइट एटसेट्रा. तो देख रहे हो, तो एक जीन के कारण कितना इफेक्ट हो गया. तो दिस इज प्लियोट्रॉपी. सो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी. अंडरस्टूड? तो ये एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी हो गया. वन जीन क्रिएटिंग सो मेनी इश्यूज. All of these characters are due to the production of abnormal connective tissue. So Marfan syndrome has been linked to a mutated gene FBN1 on chromosome 15. मतलब क्रोमोसोम 15 में एक म्यूटेशन होता है, ओके, जो आपका फाइब्रिलिन प्रोटीन बनाता है. ठीक है. सो फाइब्रिलिन इज एसेंशियल फॉर formation of elastic connective tissue. Okay. So without the structural support of normal connective tissue, the aorta can burst, particularly if the person is engaged in strenuous sport such as volleyball, basketball, etc. ठीक है. तो फ्लो हाईमैन, ये एक अमेरिकन फुटबॉलर थे. He was an American woman volleyball player. Okay, so she has been the best American volleyball player ever, but she fell to the floor and died at the age of only 31 because her aorta gave way during a game. ठीक है. तो जब वो लोग थोड़ा हाइपर एक्टिव हो गए, तो ज्यादा प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उनका aorta फट गया. So now that coaches are aware of Marfan syndrome, they are on lookout for it among very tall basketball players. तो इसलिए कोई भी लंबे लंबे खिलाड़ी आएंगे ना, तो कोचेस लोग पहले ही चेक कर देते हैं कि उसे मार्फन सिंड्रोम तो नहीं है. तो अगर मार्फन सिंड्रोम होगा, तो उसको वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, उसको मना करते हैं कि आप खेलना छोड़ दो. अंडरस्टैंड? सो देख रहे हो, तो Yes, इसीलिए sir. Marfan syndrome, comma, an example of pleiotropy. So मैंने आपको दिखा दिया कि so many genes, माने so many phenotype is affected. देख रहे हो, तो Yes, sir. long legs and hand and feet, weak aorta, poor eyesight, ओके, इतना सारा फीचर्स होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ म्यूटेटेड जीन FBN1 ऑन क्रोमोसोम 15 विच कोड्स फॉर व्हाट? फाइब्रिलिन प्रोटीन. ठीक है. सो दिस इज द केस. क्लियर? तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया, दैट इज नोन एज मार्फन सिंड्रोम. उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल पढ़ाएंगे. आप सुने हो? वाह वाह क्या सर? वाह 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 वाह. ये किस पिक्चर में ऐसा किया गया था डायलॉग? बोलिए. उस पिक्चर का नाम ही था पा. पा. देख रहे हो, अब तुम लोग पिक्चर नहीं देखोगे तो कैसे होगा बताओ. तो उसमें कौन एक्टिंग किया था बताइए? अमिताभ बच्चन, यस, अभिषेक अमिताभ बच्चन. बच्चन। अमिताभ बच्चन. तो व्हाट वाज दैट फिल्म ऑन? बोलिए. व्हाट वाज दैट फिल्म ऑन? चलिए, तो यहाँ देखिए, तो क्रिस विजिट, whose career was cut short after he was diagnosed with Marfan syndrome, said,
I don't want to die playing basketball. Many other disorders, including porphyria, okay, porphyria, sickle cell disease are an example. देख रहे हो sickle cell disease लिखा है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. एटमन। तो इसमें Yes, sir. ये मैं किसी ना किसी बुक से ही उठाया ना, जी sir. फिर एनसीईआरटी उसको रिसेसिव मेंडेलियन Autosomal कैसे recessive. बोलता है? तो जी sir. देख लीजिए। तो आर एग्जांपल्स ऑफ प्लियोट्रॉफिक इफेक्ट। ठीक है जी। तो व्हाट हैपेंस इन porphyria? Porphyria is caused by chemical insufficiency in the production of hemoglobin, the pigment that makes red blood cells red. The symptoms of porphyria are photosensitivity, strong abdominal pain, port wine colored urine, okay, port wine colored urine, and paralysis in the arms and legs. देख रहे हो, so many phenotype due to only one gene. तो हो गया प्लियोट्रॉपी। Now, many members of Yes, the sir. British Yes, sir. royal family in late 1700s and early 1800s suffered from disorder which can lead to epileptic convulsion, bizarre behavior and coma. तो देख रहे हो, तो इसलिए ये सारे जो फीचर्स हैं, तो ये सब हम लोग किस में एग्जांपल ले रहे हैं? So we are taking these as examples of what? Pleiotropy. Pleiotropy. ठीक है जी। So that is the concept. Sir, Even epileptic convulsions इवन क्या है? एक एपिलेप्सी हो जाता है। एपिलेप्सी आप जानते हो कि नहीं? जो दौरे पड़ना, Yes, sir. तो दौरे पड़ना है उसको एपिलेप्टिक कन्वर्जन्स बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये सारे जो हैं ये सब प्लियोट्रोपिक जीन्स के कारण हैं। ओके, चलिए। Yes, तो sir. उसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं क्या? बोलिए। जो पा फिल्म है, आपको याद आया कि नहीं? पा किस चीज के लिए था? सोचो। सर आप डिजीज पूछ रहे हैं सर? हाँ, क्या तो है? पा फिल्म में एक डिजीज ही दिखाया था ना उन्होंने। इट वाज अ वेरी मीनिंगफुल। प्रोजेरिया था हुआ तो यस, दैट इज प्रोजेरिया, मतलब अर्ली एजिंग। मतलब एक छोटा Yes, सा बच्चा है जो क्या होता है? सो इट्स वेरी स्मॉल चाइल्ड बट ही अपीयर्ड वेरी बिग, वेरी ओल्ड, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोजेरिया। जेरास मतलब ओल्ड एज, प्रो मतलब व्हाट? फेवरिंग। तो जैसे हम लोग छोना छोनी खाते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो फ्राइड फूड इज व्हाट? उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेरिक फूड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेरिक फूड? बोलिए। तो प्रोजेरिक फूड से आप क्या समझे? मतलब जो फूड आपके एजिंग को प्रमोट करेगा। समझ रहे हो? तो दोज फूड विच विल प्रमोट एजिंग आर कॉल्ड प्रोजेरिक फूड। तो सपोज आप लोग ज्यादा रॉ फूड खाते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एंटीजेरिक। एंटी-प्रोजेरिक। ओके, तो दैट इज एंटीजेरिक फूड, मतलब आपका एजिंग को वो कमाएगा। देखिए, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मेगैन, a 5-year-old boy with Hutchinson-Gilford progeria syndrome. Today, researchers seek to understand aging from the study of क्या? Children with this rare disease. ये जो रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, इससे प्रोजेरिया हो रहा है, मतलब इट इज अफेक्टिंग मेनी फिजियोलॉजी, है कि नहीं? भाई, एजिंग किसी एक जीन से थोड़ी हो जाएगा। वो जो जीन है वो बहुत सारा फिनोमिना को अफेक्ट करता है। सो अगेन वन जीन अफेक्टिंग मेनी फिनोमिना, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्लियोट्रॉपी। तो समझ रहे हो? तो ये आपका प्रोजेरिया का कंसेप्ट है। तो इस नोट में जो मैंने आपको दिया है, इसमें आपको टेबल वेबल सब मिल जाएगा, ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट, बट उसको आप खुद पढ़ेंगे। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे क्या? आफ्टर योर मॉर्गन जेनेटिक्स, क्योंकि तब आप हम लोग समझेंगे। आफ्टर चैप्टर 2 वी विल डिस्कस। हमारा 1 या 2 स्पेशल क्लास होगा किसके लिए? पेडिग्री एनालिसिस के लिए। ठीक है।